Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara. Today we are talking about My Lost Dollar, an important experience by Stephen Leacock. Stephen Leacock is a famous Canadian English writer, and his topics, his essays are laced with satire and humor at the same time. Stephen Leacock, born on 30th December 1869 and died on 20th March 1944. He was a Canadian teacher, political scientist, writer and humorist. Between the years 1915 and 1925, he was the best-known English-speaking humorist in the world. This underlines his important place in the literature of English language. He is known for the light humor along with criticism of people's follies. The chapter we are going to discuss, My Lost Dollar, is laced with such kind of a light humor and criticism and satire at the same time. Stephen Leacock was an economist and humorist. For a long time, he was the professor of political economy at McGill University, Montreal. He wrote few books on economics and political science. His books include Humor, its theory and technique, How to Write Literary Lapses, and Nonsense Novels. He is better known for his humorous skits. His style is simple and direct. Here we start discussing My Lost Dollar. एक बेहतरीन कैनेडियन इंग्लिश राइटर स्टीफन लीकॉक की कहानी माई लॉस्ट डॉलर को हम डिस्कस कर रहे हैं. ये ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे हो सकता है, ये एक एक्सपीरियंस हो सकता है, इसे हम एक दर्द भरा एक्सपीरियंस कहेंगे जिसे लीकॉक अपनी ज़िंदगी भर भुला नहीं पाए. यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है. माई फ्रेंड टॉड ओ मी अ डॉलर. लीकॉक कहते मेरा दोस्त है टॉड, जिससे मुझे अभी भी $1 उधार जो दिया था वो लेना है. He has owed it to me for 12 months and I fear there is little prospect of his ever returning it. अभी तकरीबन जब इस बात को लिखा गया था अनुभव को, तब इस बात को 12 महीने से ज़्यादा हो गए थे और अभी उम्मीद कम लग रही है. Little prospect, बिल्कुल उम्मीद कम है. Of his ever returning it, शायद वो कभी वापस कर दे. I can realize whenever I meet him that he has forgotten that he owes me $1. स्टीफन लीकॉक को टॉड $1 देने वाला है या देना चाहिए उससे, इस बात को टॉड ऐसा लगता है पूरी तरह से भूल गया है. He meets me in the same frank, friendly way as always. हमेशा दोस्तों की तरह खुलकर वो मिलता है. My dollar has clean gone out of his mind. ऐसा लगता है कि जो डॉलर उसने मुझसे उधार लिया था उसके दिमाग से पूरी तरह से जा चुका है. I see that I shall never get it back. और ऐसा लग रहा है कि शायद ये डॉलर मैं कभी वापस नहीं पा सकूंगा. On the other hand, I know that I shall remember all my life that Todd owes me $1. डॉलर वापस ना मिले तो बात परेशानी का सबब नहीं है. सबसे दर्द भरी बात तो यह है कि जिंदगी के आखिरी पलों तक मैं इस बात को याद रखूंगा कि टॉड से मुझे $1 लेना है. It will make no difference, I trust, to our friendship, but I shall never be able to forget it. शायद इस बात से हमारी दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर विश्वास कीजिए I shall never be able to forget it. मैं इसे कभी भी भुला नहीं पाऊंगा. I don't know how it is with other people. मैं तो भुला नहीं पाऊंगा. अब अन्य लोगों के बारे में पता नहीं है कि वो ऐसे हादसों को किस प्रकार से झेल लेते हैं. But if any man borrows $1 from me, I carry the recollection of it to the grave. पर यदि किसी व्यक्ति से मैंने अगर पैसे उधार लिए हैं और मुझसे अगर लिए तो मैं तो उसे भूल नहीं पाऊंगा. ताउम्र जिंदगी भर कब्र तक मैं उसे याद रखूंगा.
ऐसा स्टीफन लिकॉक कहते हैं। लेट मी रिलेट व्हाट हैपेंड। अब सारी घटना को विस्तार से स्टीफन लिकॉक विशद करना चाहते हैं। टॉड बोरोड दिस डॉलर लास्ट ईयर ऑन 8 अप्रैल। पिछले साल के 8 अप्रैल को टॉड ने ये डॉलर मुझसे उधार लिया था। तारीख भी याद है, इतनी याद है कि लेखक चाहकर भी भुला नहीं पा रहा है। I mentioned the date in case he says this should ever meet Todd's eye. वो इसलिए इस तारीख को यहाँ पर मेंशन करते कि कभी कभार गलती से अगर टॉड इस अनुभव को पढ़ लेता है किसी किताब में, तो कम से कम तारीख तो ध्यान में रहेगी उसके, तारीख तो याद दिलाएगी कि डॉलर वापस करना है। Must as he was about to leave for Bermuda, he needed a dollar in change to pay his taxi. जब वो बर्मुडा जा रहा था, बर्मुडा जाते समय उसे $1 की जरूरत पड़ी। बर्मुडा इज अ ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। इस नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के ब्रिटिश टेरिटरीज में जब बर्मुडा के लिए टॉड जाना चाहता था तो उसे $1 की जरूरत पड़ी, शायद चेंज ना हो। He needed a dollar in change to pay his taxi. टैक्सी के लिए चेंज नहीं था, इसलिए सहज रूप से टॉड ने $1 उधार ले लिया लेखक से। एंड आई लेंट इट टू हिम, और मैंने उसे दे भी दिया। इट हैपेंड क्वाइट सिंपली एंड नेचुरली। लेखक कहते हैं कि मैंने इतने सहजता से, इतने प्राकृतिक स्वभाव से मैंने वो $1 उसे दे दिया। आई हार्डली रियलाइज इट टिल इट वॉज ऑल ओवर। और मुझे याद भी नहीं था कि उस $1 का क्या करना है, मैं तो उसको भी भूल गया था। He merely said, "Let me have $1, will you?" मुझे याद है टॉड ने ये $1 लेते समय क्या कहा था कि मुझे $1 चाहिए, दे सकोगे? अगर कोई दोस्त $1 मांग रहा है तो मना कैसे करेंगे? एंड आई सेड, certainly, क्यों नहीं? Is $1 enough? $1 काफी है। Believe, in fact, I know when Todd took that $1, he meant to pay for it. जब $1 मुझसे टॉड ने लिया था तो परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि टैक्सी के लिए उसे देना था, पर लिया इसी तरीके से था कि वो वापस करने वाला भी है या करना ही चाहिए उसने। He sent me a note from Hamilton. बर्मुडा पहुंचने के बाद हैमिल्टन से टॉड ने एक चिट्ठी भेजी। I thought when I opened that the $1 would be in it. जब एनवेलप को, लिफाफे को उन्होंने खोला तो लिकॉक को ऐसा लगा कि शायद उस लिफाफे में $1 है, but it wasn't. पर वहां तो कुछ नहीं था। He merely said the temperature was up to nearly 100. टॉड ने सिर्फ लिफाफे के अंदर चिट्ठी में इतना ही लिखा था कि बर्मुडा का टेम्परेचर 100 के आसपास है। The figure misled me for a moment. थोड़ी देर के लिए तो लिकॉक भी आश्चर्यचकित हो गए 100 का फिगर देखकर। उन्हें लग रहा था जैसे 100 सेंट्स की या $1 की बात वो कर रहा, पर यहाँ तो बात टेम्परेचर की कर रहा था। टॉड केम बैक इन 3 weeks. 3 हफ्ते बाद टॉड वापस आता है। आई मेट हिम एट द ट्रेन नॉट बिकॉज ऑफ द $1, बट बिकॉज आई रियली एस्टीम हिम। मैं 3 हफ्ते बाद जब टॉड वापस आया तो टॉड से मिलने में ट्रेन के पास चला गया, प्लेटफॉर्म पर। अब आप सोच रहे होंगे कि पैसे के लिए गया, नहीं। लिकॉक उससे अभी भी रिस्पेक्ट करते थे, प्यार करते थे। इस प्यार की वजह से वो टॉड से मिलने चले गए। वो सोच रहे थे, आई फेल्ट इट वुड बी नाइस फॉर हिम सी समवन वेटिंग फॉर हिम ऑन द प्लेटफॉर्म आफ्टर बीइंग अवे फॉर 3 weeks. 3 हफ्ते के बाद टॉड वापस आ रहा है। किसी चिर परिचित व्यक्ति को अगर देख लेगा तो शायद अच्छा महसूस करेगा, इसलिए किसी अपने को वहां होना जरूरी था, इसलिए मैं शहर चला गया। पर इंटेंशनली या अनइंटेंशनली लिकॉक ने कहा, आई सेड लेट्स टेक अ टैक्सी अप टू द क्लब। मैंने कहा चलो टैक्सी में बैठकर क्लब तक जाते हैं। शायद इस बहाने टैक्सी शब्द सुनकर शायद बर्मुडा जाते समय जो $1 लिया था उसके बारे में याद आ जाए। बट ही आंसर्ड, नो लेट्स वॉक।
पर पहले प्रयास को, लिकॉक के डॉलर वापस मांगने के पहले प्रयास को टॉड ने धराशायी कर दिया। वो कहा, नो लेट्स वॉक, चलो चलकर जाते हैं, पैदल ही जाएंगे। वी स्पेंड द इवनिंग टुगेदर, हमने शाम साथ में बिताई। टॉकिंग अबाउट बर्मुडा, बर्मुडा के बारे में ही बात कर रहे थे। आई वॉज थिंकिंग ऑफ द डॉलर बट ऑफ कोर्स आई डिडंट प्रेफर टू ईट। बर्मुडा की बातें तो हो रही है, पर डॉलर कुछ दिमाग से जा नहीं रहा है स्टीफन लिकॉक की। उनके दिमाग में तो था, पर वो बोल नहीं पाए। वन सिंपली कांट। और ऐसे समय कितना चीप लगता है ना, $1 के लिए दोस्त को बोले वापस मांगने के लिए। आई आस्क हिम व्हाट करेंसी इज यूज्ड इन बर्मुडा। अब घुमा फिराकर स्टीफन लिकॉक बात करना चाहते हैं। बर्मुडा की करेंसी के बारे में कुछ जानते हो? एंड वेदर द अमेरिकन डॉलर गोज एट पार, क्या अमेरिकन डॉलर बर्मुडा की करेंसी से ऊपर चला गया है? आई पुट स्लाइट एम्फेसिस ऑन अमेरिकन डॉलर। एक तरफ तो लेखक ये कहते हैं कि दोस्त के प्रति उनका प्यार कम नहीं होगा, दूसरी तरफ वो उस डॉलर के बारे में बार बार याद दिलाना चाहते हैं। बट आई फाउंड अगेन दैट आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू मेक एनी रेफरेंस टू इट। पर लेखक ये जान गए कि वो किसी भी प्रकार से मेहनत करने के बावजूद भी, सारे प्रयास करने के बावजूद भी टॉड को डॉलर के बारे में संदर्भ नहीं दे पाए। It took me some time to realize that he had completely forgotten the dollar. थोड़ा समय लगा मुझे ये जानने के लिए कि टॉड अब डॉलर के बारे में पूरी तरह भूल चुका है। I asked him one day what his trip cost him and he said that he kept no counts. फिर भी मैंने हिम्मत ना हारते हुए एक बार पूछ ही लिया कि आप जब बर्मुडा गए थे तो आपको खर्चा कितना आया? पर टॉड का जवाब था, मैं कोई हिसाब किताब नहीं रखता ट्रिप के बारे में। जरा सी उम्मीद थी, वो भी खत्म हो गई। A little later, I asked him if he felt settled down after his trip and he said that he had practically forgotten about it. फिर से लेखक प्रयास कर रहे हैं कि आप बर्मुडा से वापस आए तो आप स्थिर हो गए क्या, वेल सेटल्ड हो गए? पर टॉड ने कहा, मैं उसके बारे में पूरी तरह से भूल चुका हूँ। सो आई न्यू इट वॉज ऑल ओवर। अब लिकॉक ये जान गए थे कि सारा खेल खत्म हो गया है। इन ऑल दिस आई बियर टॉड नो ग्रज। ये सारे किस्से में लेखक की, स्टीफन लिकॉक की, टॉड के बारे में कोई कंप्लेंट नहीं है। आई हैव सिंपली एडेड हिम टू द लिस्ट ऑफ मेन हु ओwe me $1 and who have forgotten it. मैंने सिर्फ टॉड का नाम उन लोगों की लिस्ट में डाल दिया है जिन लोगों ने मुझसे पैसे उधार लिए थे और मुझे वो देनदार है, उन्होंने मुझे पैसे देने चाहिए। उस लिस्ट में मैंने टॉड का भी नाम डाल दिया। There are quite a few of them now. उसमें से कुछ लोग बचे हैं अभी भी। I make no difference in my demeanor to them. पर इन लोगों से जब भी मैं मिलता हूँ तो अपने बिहेवियर में, डेमीनियर में किसी तरह का फर्क नहीं लाता, बिल्कुल नेचुरली दोस्तों की तरह मिलता हूँ। बट आई ओनली विश दैट आई कुड फॉरगेट। बस एक ही इच्छा है कि मैं इन डॉलर्स के बारे में भूल जाऊँ जिन लोगों ने मुझसे उधार लिया। आई मीट टॉड वेरी फ्रिक्वेंटली। अब मैं बार बार टॉड से मिलने लगा, रेगुलरली मिलने लगा। ओनली 2 nights ago I met him out at dinner and he was talking apparently without self-consciousness about Poland. मैं 2 रात पहले ही उससे मिला था खाने पर बात तो चल रही थी पोलैंड की, और बिना कुछ सोचे समझे वो पोलैंड के बारे में बात कर रहा था। He said that Poland would never pay her debts. टॉड जोर जोर से कहने लगा था कि पोलैंड अपना कर्जा कभी वापस नहीं करेगा। You'd think a thing like that would have reminded him, wouldn't you? आपको लगा कि कर्जे के बारे में जैसे ही टॉड ने बात की तो टॉड को लिया हुआ डॉलर भी याद आया होगा जो वापस देना है स्टीफन को। पर नहीं हुआ ऐसा। बट it didn't seem to. But meantime, a thought, a rather painful thought. पर बीच के अंतराल में एक विचार है, विचार नहीं, एक दर्द भरा विचार है, तकलीफ वाला, has begun to come into my mind at intervals. और ये विचार बार बार आ रहा था। In this
It is this: if Todd owes me $1 and has forgotten it, it is possible, indeed it is theoretically probable, that there must be men to whom I owe $1 which I have forgotten. ऐसा भी हो सकता है कि लोगों को मैंने डॉलर दिए हो और मैं भूल गया हूँ लिखना. There may be the least of them. और कुछ लोगों के शायद पैसे मेरे तरफ भी हो और मैं देना भूल गया हूँ. तो there may be a least of them. उनके पास ऐसी शायद कोई लिस्ट होगी. The more I think of it, less I like it. जितना मैं इसके बारे में सोचता हूँ उतना मुझे बुरा लगता है. Because I am quite sure that if I had once forgotten $1, I should never pay it on this side of the grave. अगर मैंने किसी से कोई डॉलर लिया है और मैं भूल गया हूँ तो मैं कब्र तक जाने तक, मरने तक, अंतिम सांसों तक मैं वो वापस नहीं दूंगा. इतना तो मुझे पता है. If there are such men, I want them to speak out. अगर कोई लोग ऐसे हैं तो मैं चाहता हूँ कि वो बोले इस समस्या के ऊपर. Not all at once. एक बार में ही नहीं, but in reasonable numbers. धीरे धीरे बोलो कम से कम. And as far as maybe in alphabetical order, and I will immediately write their names down on paper. अगर लोगों की तरफ पैसे हैं तो लोगों ने बताना चाहिए. मैं धीरे धीरे उनके नाम लिखूंगा एक पेपर पर. I don't count here men who may have lent me an odd dollar over a breach table. पर मैं जेन्युइन डॉलर की बात कर रहा हूँ, ऑड डॉलर की नहीं. ताश का पत्ते का खेल, ब्रीच खेलते समय अगर किसी ने पैसे उधार दे दिए तो इसे स्टीफन लिकॉक ऑड डॉलर कहते हैं. ऐसे ऑड डॉलर के बारे में नहीं कह रहा हूँ मैं. एंड आई एम नॉट थिंकिंग, और सोच भी नहीं रहा हूँ, of the man who lent me 30 cents to pay for the bottle of plain soda in the Detroit Athletic Club last month. पिछले महीने अगर यदि किसी दोस्त ने अगर 30 सेंट्स मुझे प्लेन सोडा बॉटल के लिए दिए हैं तो आउट ऑफ कर्टसी दिए होंगे. इस बात को मैं हिसाब में नहीं जोड़ूंगा, ऐसा स्टीफन लिकॉक कहते हैं. I always find that there is nothing like a plain soda after a tiring road ride across the Canadian frontier. कैनेडियन फ्रंटियर से थक कर आने के बाद में अगर कोई प्लेन सोडा पिला दे तो इसके जैसे दूसरी कोई बात हो ही नहीं सकती. And that man who advanced that 30 cents knows exactly why I felt that I had done enough for him. अगर किसी ने 30 सेंट देने की पेशकश की, दे भी दिए, तो ये आदमी ये सोचता होगा कि उसने ये पैसे क्यों दिए हैं और वो जानता भी होगा. But if any man ever lent me $1 to pay for the taxi when I was starting for Bermuda, I want to pay it. सोडे के लिए अगर किसी ने पैसे दिए तो शायद दोस्ती के खातिर दिए होंगे, पर टैक्सी के लिए अगर कोई डॉलर मांगता है तो लेखक कहते हैं आई वॉन्ट टू पे इट. मैं वो पैसे वापस करना चाहता हूँ. क्योंकि टॉड ने पैसे लिए और सरदर्द बन गया लेखक के लिए क्योंकि वो भूल गया. मोर देन दैट आई वॉन्ट टू स्टार्ट ए जनरल मूवमेंट. इतना ही नहीं, स्टीफन लिकॉक एक जनरल मूवमेंट, एक सामान्य आंदोलन शुरू करना चाहते हैं. आंदोलन का नाम है अ बैक टू ऑनेस्टी मूवमेंट. ईमानदारी की तरफ वापस जाने का आंदोलन. फॉर पेइंग ऑल दीज ऑड डॉलर्स दैट आर borrowed इन द मोमेंट ऑफ एक्सपेंशंस. ऐसे समय में जो ऐसे ऑड डॉलर्स लोगों ने लिए होंगे कम से कम वापस तो कर दे. लेट अस रिमेंबर दैट द ग्रेटेस्ट नेशंस वर बिल्ट अप ऑन द रॉक बेसिस ऑफ एब्सोल्यूट ऑनेस्टी. एक बात तो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, बड़े और महान राष्ट्रों का निर्माण ईमानदारी के पत्थर पर ही होता है. इसलिए बात $1 से शुरू हुई थी, अब ईमानदारी के इतने बड़े फिलॉसफी तक पहुंच गई. एक आंदोलन शुरू करने की बात स्टीफन लिकॉक कहते हैं. इन कंक्लूजन, may I say that I do particularly ask that no reader of this book will be careless enough to leave this copy round where it might be seen by Major Todd of the University Club of Montreal. अंत में लेखक सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि मैंने इस बात को आपसे शेयर किया है. आप ये जो चैप्टर, ये जो कहानी इस किताब में छपी है, उस किताब को उस टेबल के पास मत छोड़ देना जहाँ पर मेजर टॉड बैठते होंगे आजू बाजू में. शायद यूनिवर्सिटी क्लब ऑफ मॉन्ट्रियल में वो इस चैप्टर को, इस कहानी को अगर देखेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा. पर एक बात तो सच है,
टॉड ने डॉलर लिया और कभी वापस नहीं दिया, और परेशानी की बात यह है कि स्टीफन लिकॉक उस बात को कभी भूल नहीं पाए। पर आपके लिए हिदायत, इस कहानी को आप टॉड से कभी नहीं कहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। आई होप that this discussion will help you a lot to write the answers in the examination in an appropriate manner. The theme of the chapter is very easy to understand and humorous as well. Thank you very much.